Hello everyone, myself Mr. Nitin Kande and along with me Mr. Mohammad Memon. We Hello, everybody. we welcome you with a big hand, a big heart. The fact that we are sitting together here is because of one thing, and that thing is TVM. Yes, you might have guessed it very well. TVM. When I say, I feel very proud about it because it's I'm talking about something which I'm so proud of. Tarapur, Vidya Mandir, and Junior College. You are absolutely right. We are together here because of Tarapur Vidya Mandir because that is the only thing joins us or connects us. I मैंने तारापुर विद्या मंदिर ज्वाइन किया 2006 में एज ए टीचर और मुझे ये लगता था कि मेरे से पहले जो स्टूडेंट्स वहाँ से गए, जो इतना बड़ा स्कूल है, रिच हिस्ट्री है, रिच कल्चर है इस स्कूल का, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन बोईसर। सो मुझे हमेशा ये लगता था कि ये जो स्टूडेंट्स गए बहुत सारे फील्ड में इन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है, मुझे हमेशा लगता था कि इनसे कनेक्ट किया जाए, किसी ना किसी वे में इनसे मिला जाए। ऐसे तो मैं बोईसर में जो है उनसे हमेशा मिलते रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस मुझे पता चलते हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, बट हमेशा लगता था कि कुछ चीज़ें इनकी जो बातें हैं ना ये डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, तो जो अभी प्रेजेंट स्टूडेंट्स है उनको उससे कुछ लर्निंग मिले, कुछ हमारा स्कूल जब हम बोलते हैं ना एक अलग ही उसके लिए लगाव होता है ऑब्वियसली, और वो ज़्यादा तब होता है जब हम स्कूल में नहीं होते। स्कूल जब हम लोग छोड़ देते बड़े बन जाते हैं देन वी फील वेरी वेरी प्राउड अबाउट द स्कूल। सो एक इनिशिएटिव है अ, जिसके थ्रू मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ बहुत सारे एक स्टूडेंट से, उनकी बातें जानना चाहता हूँ, उनकी मेमोरीज जानना चाहता हूँ जो शायद मैंने नहीं देखी है टीवी में, मेरे से पहले की है। और ऑब्वियसली उनकी करियर की जर्नी जानना चाहता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, और ये डॉक्यूमेंटेड थिंग्स में अभी के प्रेजेंट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करना चाहता हूँ ताकि वो बहुत कुछ चीज़ें उनसे सीख सके। और उसी वजह से ये जो इनिशिएटिव है उसको मैंने नाम दिया है जेम्स ऑफ टीवीएम। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। टू बिगिन विथ, टुडे our first gem, Thank or you. one of the gems I would should say, Mohammad Maiman. And truly he is a gem of TVM, and there are many more gems obviously, they have made us proud। होता है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल को के लिए प्राउड फील करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं या बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके लिए स्कूल प्राउड फील करता है, और ही इज वन ऑफ among them, one among them obviously, no doubt about it। So uh, glad Mohammed, you agreed to talk to me. In fact, let me tell you, he is the first person I spoke about this initiative, and he was quick to jump upon it. He said, "Sir, let us do it." Those who are from Boisar, उनके लिए मिस्टर मोहम्मद का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, इज पॉपुलरली नोन और बिट पॉपुलर इन बोईसर एज मोहम्मद सर, and very popular in fact. But just for the viewers and the present students of TVM, let me tell you, he is a chartered accountant by profession, very highly educated, and at his age or for his age, he has achieved good enough in the field of we can call him an entrepreneur or a good businessman. A lot of things. He is also visiting faculty in many of the nearby colleges. He in fact coaches higher standard students, graduate students, even CA students for that matter, and very proud Thank you. of him. So Mohammed, thank you Pleasure, sir. for Pleasure. pushing me to do this, and let us begin now. As we had decided, I would like to know about your memories of TVM of your time. First of all, I passed my 10th standard in 1999, and so probably I must have taken admission in 1987. So I passed out 10th standard in 1999. Passed out my 12th commerce from TVM in 2001. So I was there for 12 14 years. Sorry, 14 years in TVM.
So all my education, all my childhood memories, my education has been through TVM, and I feel proud, I feel privileged that I have been a part and a student of such school. एक बहुत बहुत बड़ा स्कूल, बहुत बड़ा नाम रह चुका है टीवीएम में, आज भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आज बहुत सारे स्कूल्स आ गए हैं। उस जमाने में टीवीएम में पढ़ना मतलब बहुत बड़े क्रेडिट की बात होती थी, बहुत बड़े क्रेडिट की। पालघर से, धानु से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, और टीवीएम में एडमिशन होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। आज मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसी स्कूल से पढ़ चुका हूँ जिसका इतना बड़ा नाम रहा है, इतना बड़ा ब्रांड, मैं बोल सकता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन एजुकेशन इज बोईसर। और मैं बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ कि मैं ऐसी स्कूल से पढ़ चुका हूँ। So, Mohammed, I would like to know, uh, as a student, एज ए स्टूडेंट ऑफ टीवीएम, उस समय की किसी भी लेवल में, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या हायर सेकेंडरी लेवल हो, जो भी यादें है, या कुछ ऐसी यादें हैं जो, इफ यू वांट टू शेयर, और अचीवमेंट्स हो, जो भी याद आता है उस समय की। ऐसे तो अगर मैं शेयर करना चाहूँ ना सर, तो बहुत बहुत सारी मेमोरीज है, क्योंकि 14 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। एंड 14 long years आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट स्कूल। सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट देर आर फ्यू थिंग्स जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा करीब। और लाइफ में आपके टीचर्स ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मेंटर्स होते हैं, ऐसा रोल प्ले करते हैं जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आपको देकर जाते हैं। और वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज कभी नहीं भूलते आप। जैसे मुझे याद है, मैं टीचिंग प्रोफेशन से भी हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। मैं 2001 से पढ़ाता हूँ, सो ऑलमोस्ट 20 साल हो गए मुझे टीचिंग प्रोफेशन में। तो मेरे जितने भी बैचेस पास होते हैं, मैं उनको एक स्टोरी ज़रूर सुनाता हूँ, आपको बोर नहीं करूँगा। बहुत छोटे में आपको बता देता हूँ मैं। हम लोगों ने 8 स्टैंडर्ड में एक पोएम पढ़ा था, हमको शाह टीचर ने पढ़ाया था, प्रिंसिपल्स पुट टू टेस्ट। उसमें एक बच्चा रहता है, उसने प्रिंसिपल बनाया रहता है कि मैं लाइफ में कभी चोरी नहीं करूंगा। उसके दोस्त लोग उसके पास एक दिन आते हैं, बोलते हैं कल हम लोग आम के बगीचे में जा रहे हैं आम चोरी करने के लिए। तो वो बोलता है नहीं, मैंने प्रिंसिपल बनाया कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तो उसके दोस्त उसको कन्विंस करते हैं, तू आ या मत आ, चोरी तो होनी है, तो तेरे नहीं आने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वो पूरी रात सोता नहीं है, सोचता है जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। दूसरे दिन सुबह उठता है और जाता है। तो स्टोरी का मॉरल क्या था? स्टोरी का मॉरल ये था कि प्रिंसिपल्स लाइफ में बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रिंसिपल्स का एक्चुअल टेस्ट आता है, तब आपको प्रिंसिपल्स पे खरे उतरना है। और मोस्ट ऑफ पीपल, दे फेल व्हेन देयर प्रिंसिपल्स आर पुट टू टेस्ट। ये मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन स्टोरी है, कि अगर प्रिंसिपल्स बनाओ तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, कितना भी टफ टाइम हो आपके लिए, कितना भी चैलेंजिंग टाइम हो, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। शाह टीचर, शाह टीचर इनफैक्ट परसों मुझे एक शादी में मिल गए थे। हम लोग ने एक शादी अटेंड की परसों। शाह टीचर के जाके मैंने पैर छुए, उनसे बातचीत हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उनसे बोलना भूल गया कि ये स्टोरी मुझे याद है करके। मैं वापस गया, थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, तो मैंने उनको जाके बताया, उनको भी याद नहीं था ये स्टोरी। जब मैंने बोला तो उनको याद आया, एंड उनके चेहरे पे जो स्माइल था ना, वो देखने लायक था। शी वॉज सो हैप्पी कि मुझे वो कुछ याद था। मैंने बोला मैम, मैं आपका नाम लेकर सब बच्चों को बताता हूँ कि ये स्टोरी मुझे शाह टीचर ने पढ़ाई है, और मेरे लिए लाइफ टर्निंग एक स्टोरी है ये। तो ये सबसे बेहतरीन मेरे लिए एक मोमेंट है, एक मेमोरी है टीवीएम का। उसके अलावा 8 स्टैंडर्ड में किंगे सर पढ़ाने के लिए आए थे, हम लोग को अलजेब्रा पढ़ाते थे। तो किंगे सर से बहुत लोग डरते थे, और उनका थोड़ा सा एक कैसे बोलेंगे, मतलब आई शुड नॉट से दिस, लेकिन एक बहुत खतरनाक इमेज था किंगे सर का, लोग डरते थे किंगे सर से। बट मेरा बहुत अच्छा ट्यूनिंग था किंगे सर से। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मैं अलजेब्रा में फेल हो गया था। तो किंगे सर वो एक एक को बुला के पेपर देते हैं। तो मुझे पेपर दिया था, तो मुझे सिर्फ एक एक लाइन उन्होंने बोला था, मोहम्मद दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। दैट हर्टेड मी वेरी बैडली, कि अगर सर मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। नेक्स्ट टाइम से, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से, मैंने अलजेब्रा में टॉप करना शुरू किया, एंड ही वाज प्राउड ऑफ दिस। तो आज भी किंगे सर मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा मैंने एक दो मेमोरीज लिख के रखी। हाँ, मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा सेंट टीचर के बारे में। हर टीचर का अपना यूनिक तरीका होता है। सारे टीचर्स टीवीएम के अच्छे थे, मैं बोलूंगा टीवीएम जैसे टीचर्स, मतलब हम लोग के टाइम पे जो टीचर्स थे, वो टीचर्स न कभी आए हैं अभी, न कभी आएंगे। मैं आज के टीचर्स को बुरा नहीं बोलता, बट वो टाइम के टीचर्स का एक अलग बात था। वो लोगों ने हमको जो पढ़ाया है, हमको जो, जिस तरह से हमको हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग किया है, हमको जो वैल्यूज दिए हैं, ठीक है, वो टीचर्स के अंदर एक पैशन था। वो प्रोफेशनल्स नहीं थे, कमर्शियल नहीं थे, पैसे के लिए काम नहीं करते थे। वो टीचर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है। सेंट टीचर मुझे मुझे ही नहीं, सारे बच्चों को अपने बेटे जैसा रखती थी सेंट टीचर। हमें याद है सेंट टीचर से ज्यादा स्वीट कोई नहीं बोलता था। और वो हमेशा 26 जनवरी को और 15 अगस्त को वो गाना गाते थे। तो सेंट टीचर गाते थे, सब बच्चे रोते थे, सब बच्चे, कर चले हम फिदा वतन साथियों। ठीक है, तो ये था।
सॉरी मोहम्मद, मैंने इंटरप्ट किया बिकॉज आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। ऑब्वियसली टीचर्स की बातें की। सेंट टीचर के बारे में जब बोला कि वो आपको बच्चों के जैसा प्यार करती थी, स्टूडेंट्स को नहीं, या ओनली स्टूडेंट्स को ही नहीं। No, when I joined, I was hardly 23, 24 year old as a teacher in TVM. और जब तक वो थी, मेरा एक्सपीरियंस 10 साल का हो गया, फिर भी हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी, है ना। तो और बहुत सारे जो टीचर्स के नाम लिए और भी होंगे ऑब्वियसली, मेरे से पहले होंगे। शाह टीचर के बारे में बताया मुझे। कुछ उनके लास्ट 2-3 साल हमने साथ में काम किया। इस लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट स्पोकन टू हर इट, बट बहुत कुछ सीखने को मिला। और बहुत सारे किंगे सर के बारे में, देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल, स्टिल वर्किंग विथ हिम, एंड इट्स अ प्लेजर। हाँ, लेकिन एक एक बात सही है, हमने भी ज्वाइनिंग से पहले, मेरे ज्वाइनिंग से पहले बहुत टीचर्स के बारे में सुना है। बिग शूज टू फिल फॉर टीचर्स लाइक अस। हमारा भी एक्सपीरियंस अब 15 साल का हो गया है, लेकिन जब भी आपके जैसे स्टूडेंट से और उससे पहले के स्टूडेंट से सुनते हैं, तो वी रियलाइज कि हाँ, रियली दे वर, दिस इज एक्चुअली big responsibility to carry forward the legacy of the kind of teachers, particularly TVM always used to have. uh, we are trying best from our side. एक जॉन रोजारियो मैडम के बारे में बोलूँगा कि अभी प्रिंसिपल बन चुकी है जॉन रोजारियो मैडम। मैं प्राउड फील करता हूँ। तो प्रेजेंट में प्रिंसिपल है जॉन रोजारियो मैडम। आज भी मुझे बहुत वैल्यू देती है जॉन रोजारियो मैडम। आज भी कोई भी बच्चा जाएगा तो बहुत वैल्यू देती है मैम। और ये 26 जनवरी पे मैं स्कूल में गया था, तो उन्होंने एक बात बोली, मुझे बहुत 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 टच हुआ मेरे दिल को। उन्होंने बोला कि टीवीएम का रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मोहम्मद के बगैर अधूरा है। मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई, मतलब मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे भारत रत्न से सम्मानित कर दिया, इतनी बड़ी खुशी हुई सीरियसली। क्योंकि ऐसा बोला, मतलब मेरे लिए मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। मैंने मेरे लाइफ में थोड़ा बहुत कुछ हासिल किया, अभी बहुत मेनी माइल्स टू गो, बहुत कुछ और हासिल करना है। लेकिन मेरे लिए करंट प्रिंसिपल मैडम से या मेरे किसी भी टीचर से ऐसा सुनना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की, बहुत बड़े सम्मान की बात है। भले उन्होंने किसी के सामने बोला नहीं बोला, मेरे को कोई मैटर नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे बोला, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे पब्लिक में अप्रिसिएशन चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन्होंने ऐसा बोला मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे जाने की वहाँ पे कदर है। मैं हर इंडिपेंडेंस और हर इस पे रिपब्लिक डे पे जाता हूँ, तो पलसूले सर है, देशमुख सर है, किंगे सर है, सारे टीचर्स बहुत वैल्यू करते हैं। और उनको पता है कि मोहम्मद आएगा। मैं पिछले 26 जनवरी नहीं आया था, मैं मुंबई में था कि कहीं कुछ काम से था। तो जब मैं नेक्स्ट 26 जनवरी को नहीं गया, 15 अगस्त को गया, सारे टीचर्स ने मुझे पूछा, मोहम्मद तू 26 जनवरी को क्यों नहीं आया था। मतलब मेरा एक इंपॉर्टेंस है कि ये बंदा आना ही आना है, अगर नहीं आया तो लोग मुझे मिस करते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। अच्छा, अब मेमोरीज के बाद, स्कूल की जो मेमोरीज है उसके बाद, अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज पे, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि यू हैव अचीव्ड अ लॉट, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑब्वियसली, बट आपके एज के हिसाब से यू हैव डन गुड इनफ। आई एम नॉट सेइंग यू शुड बी कंटेंट, यू शुड ग्रो और डू अ लॉट बेटर देन दैट, लेकिन जो भी किया है बोईसर में रह के अप्रिशिएबल है। एंड मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है कि आज अगर हमारे प्रेजेंट स्टूडेंट देखते हैं तो उनको वो चीज़ें भी पता चलनी चाहिए, कि इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि हमारे स्कूल से गया हुआ बच्चा आज बोईसर में ये अचीव किया है, किस तरह से किया, क्या लर्निंग है, उससे उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू शेयर दोज थिंग्स, कि मतलब एक टीवीएम के बाद की जर्नी अब तक की। सबसे पहले मैं सर आपको बता दूं कि स्कूल टाइम में मेरे एकेडमिक्स अच्छे नहीं हुआ करते थे। मेरे मार्क्स नहीं अच्छे होते थे, और बहुत बार प्रमोशन मार्क्स भी मिले हैं मुझे टीवीएम में। और मैं थोड़ा शांत बच्चा हुआ करता था स्कूल में, और बहुत शाय होता था, तो टीचर्स मुझे पसंद करते थे। और मुझे काफ़ी टीचर्स का सपोर्ट रहा है आगे धकेलने के लिए, नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट क्लास में। तो मैं बहुत थैंक यू फील करता हूँ टीचर्स के लिए कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। मैं 10th तक मुझे इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज़ में। 11th में मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया, मेरे डैडी चाहते थे कि मैं साइंस ज्वाइन करूँ। मेरा 67 या 69 कुछ परसेंट आया था 10th में। और उस टाइम पे सर आप जानते हैं कि 69% भी बहुत होता था। अभी 90s आते हैं, तब 70s और 80s में बोर्ड के टॉपर्स हुआ करते थे। तो तभी 67% बहुत होता था। तो मेरे डैड को किसी ने सजेस्ट किया कि आप बच्चे को साइंस कराओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। तो आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे कॉमर्स करना है, मुझे बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, पहले से ही बिजनेस करने का शौक था।
तो कॉमर्स ज्वाइन किया। 11th कॉमर्स में मैंने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स में आया था। तो घर पे जब रिजल्ट लेके गया तो मेरे डैडी को यकीन नहीं आया था कि मैं मेरे कुछ 71.7% मार्क्स थे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, और मैं टॉप 10 स्टूडेंट्स में था, रैंक मिला था मुझे पहली बार स्कूल में। तो डैडी को यकीन नहीं आया। तो नाइकोडे सर का घर का लैंडलाइन नंबर था मेरे पास में, रिजल्ट पेरेंट्स से साइन करवाना होता था। तो डैडी को रिजल्ट बताया तो उन्होंने बोला कि किसी और का रिजल्ट लेके आया। तो नाइकोडे सर को मैंने लैंडलाइन पे फ़ोन करके मेरे डैडी से बात कराया था। तो मेरे डैडी को नाइकोडे सर ने एक बात बोली थी कि ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत टैलेंटेड है, और ये ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेगा। सर के वर्ड्स ट्रूथ है। नाइकोडे सर मेरे लाइफ में एक बहुत बड़े रोल मॉडल है। नाइकोडे सर ने मेरा पोटेंशियल पहचाना। हाँ, हम एज अ स्टूडेंट अपने आप को नहीं जानते, हमारा जो मेंटर होता है वो हमारा पोटेंशियल जानता है। कभी कभी हमारे मेंटर्स हमें तकलीफ देते हैं ताकि हम रियलाइज करें कि हमारा पोटेंशियल क्या है। वो हम पे बर्डन डालते हैं, हम पे बोझ डालते हैं, हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं जानबूझ के, कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन खड़ा करते हैं कि हम फ्रस्ट्रेट और अच्छा करें। हालांकि नाइकुडे सर ने मुझ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरा पोटेंशियल रियलाइज किया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पोटेंशियल रियलाइज किया। मेरे डैड को बोला, बाकी टीचर्स भी अच्छा बोलते थे, लेकिन नाइकुडे सर ने जो बोला वो मुझे आज भी छूता है मेरे दिल को। उन्होंने मेरे डैड को बोला कि बच्चा बहुत नाम बनाएगा, अच्छा करेगा जिंदगी में, आपका नाम रोशन करेगा। उस दिन मेरे डैड रोए थे, और उनकी बात ट्रू है नायकुडे सर की। सर थैंक यू वेरी मच, आपके वर्ड्स में कभी नीचे नहीं जाने दूंगा सर, एंड आई विल कीप गिविंग माय बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। फिर 12th पास आउट हो गया मैं। फिर थोड़ा सा ज़िद्दी भी हूँ मैं, तो मुझे बैंड्रा में भवंस कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो भवंस में मैंने हाँ अप्लाई किया था। तो फर्स्ट लिस्ट लगी, मेरा नाम नहीं आया। सेकंड लिस्ट लगी, नाम नहीं आया। थर्ड लिस्ट लगनी थी और एक मार्क बाकी था, तो मुझे लगा मेरा नाम आ जाएगा। थर्ड लिस्ट वॉज फॉर रिजर्व कैटेगरीज, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैं वापस आ गया, चिंचनी कॉलेज में एडमिशन लिया। 3 साल चिंचनी कॉलेज में पढ़ाई की। तीनों साल चिंचनी में अच्छा मार्क्स लाया। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद में फिर मैंने अपने कोचिंग क्लासेस चालू किए। मैंने पार्ट टाइम कोचिंग पहले से ही शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद में मैंने कोचिंग चालू की। उसके पहले मेरे डैडी एक किराना मर्चेंट थे, होलसेल रिटेल बिजनेस था। तो मैं मेरे डैडी का बिजनेस देखता था, थ्री व्हीलर टेम्पो भी ड्राइव करता था। हमारा लोडिंग अनलोडिंग का सब काम हुआ करता था, हम लोग होम डिलीवरीज देते थे। तो मैंने मेरे डैडी का बिजनेस वगैरह देखा हुआ है। टीचिंग प्रोफेशन में जब ज्वाइन किया, मैंने एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया था पढ़ाने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे बहुत कम अमाउंट मिलती थी, नॉमिनल अमाउंट। और किराना के बिजनेस में अच्छा पैसा कमाता था डैडी के साथ में, अच्छा पैसा देखा हुआ था। तो जो फीस मुझे मिलती थी वो बहुत कम होती थी। मेरी फर्स्ट सैलरी आई थी 1300 रुपये। मैंने जाके डैड को चेक दिया था, बहुत खुशी खुशी। 2001 की बात है ये। और डैडी को बोला, पापा मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करना, पहला सैलरी आया। मैंने मेरे दोस्तों में सबसे पहला कमाया था। तो डैडी ने बोला कितना चाहिए, तो मैंने 1000 रुपीज मांगा था। तो मुझे सर पे मारा था, और बोलते 1300 कमा के लाया साले, 1000 रुपये तो उड़ा देगा। तो वो उस टाइम पे 1000 रुपये लेके जाके पार्टी की थी, लेकिन उसकी एक अलग बात थी, बहुत प्राउड फील हुआ था। और मेरे डैडी ने मुझे बोला था कि बेटा तू अभी किराना के धंधे पे मत ध्यान दे, तू टीचिंग पे ध्यान दे, तेरा लाइफ बन जाएगा। ये उनका विजन था, फोरसाइटेडनेस था। हालांकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने टीचिंग पे ध्यान दिया और टीचिंग पे फोकस किया। 2005 में अपने कोचिंग क्लासेस चालू किए, अच्छे फ्लरिश हुए। आज भी मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ। और अब मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता, अब मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता हूँ, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस सीए पे है। 2017 में मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पास आउट हो गया, सीए फाइनल्स पास आउट हुआ। अभी फिलहाल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने कॉस्ट अकाउंटेंसी की भी एग्जाम पास की है। मैंने पीजीडीबी इन एचआर किया है, पीजीडीबी इन फाइनेंस किया है, एमकॉम किया है। अभी करंटली मैं फाइनल ईयर एलएलबी परसू कर रहा हूँ, सीएस भी करने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की सीबीडीटी की एक एग्जाम होती है, टीआरपी करके, टैक्स रिटर्न प्रिपेरर। तो उसके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो बोरीवली सेंटर में 500 लोगों में से 50 लोग सिलेक्ट होते हैं, और वो 50 में से मेरा सेकंड रैंक आया था। तो मैंने टीआरपी की एग्ज़ाम पास की थी। 3 या 4 साल एज अ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर काम किया। 2-3 साल मेरी टैक्स की फर्म चलाई। अभी पिछले 3 साल से मैं सीए फर्म चला रहा हूँ, और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह टचवुड हमारी सीए फर्म बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग लोकल क्लाइंट्स को बहुत कम केटर करते हैं। एक न्यूजीलैंड में सीए फर्म है। तो न्यूजीलैंड में जो सीए फर्म है वहाँ पे हमारी एक स्टूडेंट काम करती है, उनके थ्रू मुझे काम आया है। अब हम लोग यहाँ पे आउटसोर्स अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं और उनके क्लाइंट्स को कैटर करते हैं। तो न्यूजीलैंड का अकाउंट्स हम लोग यहाँ से बैठे बैठे देख रहे हैं। और आई शुड से दिस, मैं थोड़ा सा प्राउड फील करूंगा इसमें, कि बोईसर में कोई भी ऐसा फर्म नहीं है, सीए फर्म या कोई भी ऐसा फर्म जो आउटसोर्स अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा हो। तो वी आर द ओनली वन डूइंग दिस एट दिस मोमेंट। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है।
एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और हम लोग और बड़ा काम करेंगे, हम लोग आउटसोर्स अकाउंटिंग सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ये फील्ड हमारा और ग्रो होगा। हम लोग लोकल क्लाइंट से बहुत कम केटर करते हैं और ज़्यादा उसी पे ध्यान देते हैं। दैट्स इट सर। ये जो अचीव किया है, इतना जो भी किया, क्वालिफिकेशन जो है या जो बाकी चीजें है, पायोनियरिंग थिंग्स जो भी बताई, तो ऑब्वियसली इजी तो नहीं रहा होगा ना, कुछ डिफिकल्टीज भी होगी। और आई कैन गारंटी बहुत सारी डिफिकल्टीज टैलेंट या इंटेलेक्ट से रिलेटेड नहीं होगी, हमारे एरिया से रिलेटेड हुई होगी, क्योंकि यही सारी चीजें करना मुंबई में रह के आसान होता है, पुणे में रह के आसान होता है, बोईसर से ये सारी चीजें करना इज नॉट इजी। सो इफ यू कैन थ्रो लिटिल बिट लाइट ऑन कि क्या कुछ था डिफिकल्ट, क्या डिफिकल्टी थी, तो जो बच्चे अभी सुन रहे हैं उनको पहले से पता हो, you know somebody has said no कि you don't have to do all the mistakes on your own। दुनिया में लोगों ने बहुत सारी मिस्टेक्स करके रखी है, तुम उनसे सीखो, खुद को बर्बाद मत करो। सो प्लीज इफ यू कैन टेल अबाउट इट। मैं इसके बारे में सर ना, मेरी सीए के जर्नी के बारे में बोलूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए। मुझे बहुत साल लग गए सीए बनने के लिए। उसके पीछे रीज़न है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट होता है। एक तो सर मैंने कोचिंग क्लासेस चालू कर दिए थे, तो मुझे कमाना भी था, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी थी, मैं पढ़ा रहा था। और आप अगर सीए कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीए करना है। तो वो चीज़ मेरे लिए लिबर्टी नहीं था, तो मुझे वो भी देखना था। उसके अलावा आप देखो, आज भी बच्चे सर, अभी इतने साल हो गए, आज भी बच्चे अगर उनको सीए करना है तो मुंबई जाते हैं। क्लासेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्लासेस नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं होता। बुक्स कौन सी पढ़नी सर हमको मालूम नहीं होती थी। आज के बच्चों को पता चलता है, ये सब्जेक्ट लिए ये टीचर की, ये ऑथर की बुक अच्छी है, ये सब्जेक्ट लिए। सर हमारे टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ट्वेल्थ के बाद भी सीए होता है। अगर पता होता शायद मैं थोड़ा जल्दी हो गया होता चार्टर्ड अकाउंटेंट। मे बी अल्लाह की मर्जी है, इट्स बाय द डेस्टिनी, कि आप, मुझे 2017 में ही बनना था। लेकिन फिर भी सर अगर मुझे पता होता तो फ़र्क पड़ता। मुझे मालूम ही नहीं था कि ट्वेल्थ के बाद भी सीए होता है। तो हमारे टाइम पे गाइड करने के लिए लोग नहीं थे, हमारे टाइम पे एक्सेस नहीं था, जैसे आपने बोला इंटरनेट का। आज आप देखो ऑनलाइन सीए के लेक्चर्स आपको मिलते हैं फैकल्टीज़ के, वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारे लिए। अभी आज आपको पता होगा पालघर में सेंटर आ गया सीए एग्जाम्स के लिए, सुंदरम स्कूल में होता है। हमारे टाइम पे नियरेस्ट सेंटर वैसे ही होता था, तो एग्जाम वैसे ही जाके लिखनी पड़ती थी। सीए के एग्जाम में बहुत नर्वसनेस होता है, तो वो नर्वसनेस में हमको ट्रैवल करके जाना रहता था, और नेक्स्ट डे फिर पेपर होता था। तो ये सारी डिफिकल्टीज सीए में आई है। उसके अलावा और बहुत सारी डिफिकल्टीज आई है, जैसे मैं एजुकेशन इतना परसू करता हूँ, तो अगर मैंने इतना कोर्सेज किया है, तो लोगों को लगता है कि कोर्सेज इतने क्यों। अपने बोईसर में एक ट्रेंड है या एक सोच है कि बच्चा अगर बच्चा ही नहीं, टीचर्स भी, मैंने बहुत कम टीचर्स देखे हैं जिनका एजुकेशन कंटिन्यूइंग है। और मैं किसी टीचर पे टिप्पणी नहीं करूंगा या कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप टीचर हो तो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ सर। उसके पीछे रीज़न है कि हम पढ़ेंगे, हम अपडेटेड रहेंगे, तो हमारे बच्चों को हम अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे डैड भी मुझसे आज भी गुस्सा करते हैं, काम धंधे पे ध्यान दे, क्या पढ़ाई करता है, अभी भी एग्जाम देने जाता है। मेरे रिश्तेदार है वो मुझे बोलते हैं तेरे बच्चे के साथ में एग्जाम लिखने के लिए जाएगा क्या। तो लेकिन सर आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करें, ताकि वो बच्चों को उतना अपडेटेड नॉलेज दे पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज आई, और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होने की वजह से डिफ़िकल्टीज आई, क्योंकि मुझे अर्निंग्स भी देखना था। बट ओवरऑल सर मैं बहुत लकी रहा हूँ, और भले सीए थोड़ा लेट क्लियर किया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा सर, आप जानते हैं, बच्चों को भी बोलूँगा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं बोलूँगा, आपको जो चाहिए उसके लिए डिटरमिन्ड रहो, डटे रहो। मैं सीए मैंने एग्ज़ाम देना शुरू किया 2005 में। 2005 और 2006 में मैं इंटर क्लियर हो गया। 2009 में सीए फाइनल्स का एक ग्रुप क्लियर हुआ, और 2017 में दूसरा ग्रुप क्लियर हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं टिका रहा कि भाई मुझे बनना है। अगर आप डिटरमिन्ड हो तो देर सवेर सही, लेकिन आप आपके मंजिल पे पहुंचोगे। आपको अपनी मंजिल पे नजर बनाए रखनी है, आपको रुकना है। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, यू हैव टू, आपको उस पर टिके रहना है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं टिका रहा, मैंने छोड़ा नहीं। मेरे साथ सीए करने वाले बहुत लोग सीए छोड़ चुके हैं, लेकिन मैं भले लेट क्लियर हुआ, लेकिन मैंने मेरा फोकस रखा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, मेरी मंजिल मैंने हासिल की, और आज मैं यहाँ पे एक सीए का ऑफिस लेकर बैठा हूँ। मुझे प्राउड फील होता है जब कोई बोलता है, जब कोई मुझे मिलने आता है या मुझे बोलता है कि अच्छा है तूने सीए क्लियर कर लिया। मेरे साथ जो लोग ड्रॉप आउट हो गए,
वो लोग बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा मैसेज ये है कि आप टिके रहो, बस आपकी मंजिल मिल जाएगी आपको। फैंटास्टिक। एक छोटी सी चीज उससे ही जोड़ता हूँ मैं कि हम अभी मोहम्मद सर के ऑफिस में ही बैठे, बाय द वे, है ना? दिस इज हिज ऑफिस, एंड दैट्स इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. No, it's not a small deal, owning uh, uh, the kind of office he owns, uh, in that too in the center, heart of Boisar in Oswal. It's not that small thing. One thing I would like to you know make our listeners or the viewers understand कि एक चीज आपने नोटिस की होगी मोहम्मद के बारे में कि कोचिंग, बाकी चीजें करना, सीए करना, उसके बाद और अपग्रेड करते रहना क्वालिफिकेशन को, नो, ये जो मल्टीटास्किंग होती है ना, दैट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. एटलीस्ट ये थोड़ा सा दिमाग में डालना चाहिए. अच्छा, और एक चीज बिट क्यूरियस अबाउट, एंड बाकी लोगों के लिए भी. अब क्या, मतलब ये तो ठीक है, लाइफ में तो बहुत बड़ा बना जा सकता है, तो क्या एम्बिशंस है लाइफ को लेके, नॉट ओनली दिस, एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? सर इट्स अ टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया। आज भी मैं बहुत ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मैं पैसे बहुत नहीं कमाता, बट मैंने एक अच्छा गुडविल बनाया, एक अच्छी रिप्यूट बनाई। मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन चुका। अभी बहुत जल्दी मेरा नेक्स्ट मंथ में एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वी आर स्टार्टिंग अप अ वेडिंग प्लानर्स बिजनेस इन बोईसर, जो आसपास में कहीं भी वेडिंग प्लानर्स, लोकल वेडिंग प्लानर्स कहीं भी नहीं है बोईसर पालगढ़ धानों में, तो वो सेटअप कर रहे हैं। हम लोग एक टेक्सटाइल बिजनेस में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, वी आर लुकिंग आफ्टर इट। मैं एक एचआर फर्म में भी साइलेंट पार्टनर हूँ। तो मैं आज के डेट में फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूँ। सो इट्स द टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो मेरा एक एम है सर, कि मैं बोईसर में एक लाइब्रेरी चालू करना चाहता हूँ। मैंने फेसबुक पे भी इसके लिए पोस्ट डाला था, बट उसके लिए मैं अभी भी थोड़े रिसोर्सेज सर्च कर रहा हूँ। अपने एरिया में जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं, सी ए सी डब्ल्यू एस सी एस की एग्जाम्स देते हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं, उनको घर पे, या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं, उनको घर पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो मुझे एक बोईसर में लाइब्रेरी चालू करनी है, जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत सपोर्ट, मैन पावर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लोगों से देख रहा हूँ। तो मैं बहुत जल्द बोईसर में कमिट करता हूँ सर, मैं आपके सामने आज सबके सामने वर्ड देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, भले 2 साल और लग जाए, लेकिन मैं लाइब्रेरी ज़रूर शुरू करूँगा। अपने एरिया के बच्चों को वो चीज़ मिलनी चाहिए कि उनको लाइब्रेरी मिले, और एकदम कम कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे, उनको कॉस्ट भी ना लगे। दूसरा सर मेरा एक सोच ये है कि अपने बोईसर में सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो हमारी जो लाइब्रेरी रहेगी वो संडे को बंद रहेगी। तो महीने में 2 संडे को हम लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रोग्राम करेंगे, जहाँ पे एंकर आएगा, सीनियर सिटीजन्स को एंटरटेन करेगा, उनकी बात सुनेगा। अगर कोई अच्छा गाना गाता तो गाना गाए, कोई गिटार बजाता है गिटार बजाए, कोई पियानो बजाता है पियानो बजाए, अपनी बात शेयर करे, अपनी स्टोरीज शेयर करे, वो अपनी बात रखे, उनको लगे कि हाँ हमारी ज़िंदगी में कुछ है, तो उनको भी अच्छा लगे। तो उनके लिए कहीं एंटरटेनमेंट नहीं है, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं कुछ करना चाहूँगा। और मेरा एक बहुत बड़ा एम है, अभी मैं उसके काबिल नहीं हूँ लेकिन आगे जाके करूँगा। मेरी सर इच्छा है कि कन्यादान प्रोजेक्ट हो, जिसमें बच्ची किसी भी समाज की, किसी भी धर्म की हो, अगर उसके फादर नहीं है, और अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो उनकी शादियों का पूरा खर्चा मैं और मेरे साथ जो लोग जुड़ना चाहेंगे, हम लोग मिलके उठाएंगे, और हम लोग उनकी शादियों में फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट करेंगे। और जैसे अच्छे घरों की शादी होती है वैसे उनकी शादियाँ करा के देंगे। उसको नाम देंगे कन्यादान प्रोजेक्ट। और मेरा एक छोटा सा और एक सोच है कि हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, तो आई एम नॉट फिजिकली वेल। लेकिन हम ये बोलने में बहुत कतराते हैं कि आई एम मेंटली नॉट वेल। यू शुड ऑल्सो स्पीक अबाउट योर मेंटल हेल्थ। आज हमारे कंट्री में आप अगर ये बोलो कि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, लोग आपको पागल समझते हैं। मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है इसका मतलब आप पागल नहीं हो, आप स्ट्रेस्ड हो, आपको टेंशन है। तो इसके लिए खुल के बोलना, क्योंकि बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड्स कर लेते हैं। आप इतने वीक हो जाते हो कि आप लोगों को बोलने से डरते हो, और वो अंदर घुटते हो, फिर आप आत्महत्या करते हो, सुसाइड्स करते हो। आपके पीछे आपकी फैमिली है। तो आप बिंदास, बेझिझक, बेधड़क होकर बोलो कि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई पागल समझता तो समझने दो, आप बोलो मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो ये मेंटल हेल्थ पे मैं कुछ सेमिनार्स बोईसर में करने की सोच रखता हूँ, ताकि जो यंगस्टर्स है जो वीक हो जाते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं, उनको एक मैसेज जाए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और हम एक हेल्पलाइन भी शुरू करेंगे, जिसमें
अगर कोई मेंटली वीक है तो फ़ोन करके बात कर सकता है, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं और धीरे-धीरे हम कुछ और भी करेंगे। सो आई मस्ट से इट्स अ टाइम टू गिव बैक टू द सोसाइटी। द सोसाइटी हैज़ गिवन मी अ लॉट। थैंक यू। बहुत फैंटास्टिक डिस्कशन रहा। इसके बाद मुझे एक छोटा सा पॉइंट लाना है बीच में कि अभी जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स है, ऑब्वियसली द लाइफ इज डिफरेंट नाउ। योर स्कूल डेज, आवर स्कूल डेज, वी आर टॉकिंग अबाउट वे बैक, कुछ अराउंड 2 decades होने को आगे, अगर थोड़ा इधर उधर एक दो साल छोड़ दे तो इट्स अ बिग टाइम इन लाइफ जर्नी। सो अब कल्चर अलग है, टाइम अलग है, थिंग्स आर डिफरेंट। जैसे बोला एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अब सबके हाथ में है, जो चीज चाहिए वो, है ना? तो उतना इंफॉर्मेशन लेना उतना डिफिकल्ट नहीं रहा जैसा हमारे टाइम पे हुआ करता था। फिर भी कंसिडरिंग टुडेज पार्ट एंड सिंस यू आर continuously in touch with today's generation students and coaching them on a regular basis, प्रेजेंट टीवीएम के जो स्टूडेंट्स है किसी भी लेवल के हो, पर्टिकुलरली चलो हायर सेकेंडरी ले लो, कॉमर्स फील्ड के लिए या एनी अदर फील्ड, उनके लिए क्या मैसेज है? सर सिर्फ टीवीएम के लिए नहीं, पूरे बोईसर विसिनिटी के लिए मैं बोलूँगा। और मैं बोलूँगा कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ कि आप अपने बारे में सोचो कि क्या आपका एग्जिस्टेंस सोसाइटी के लिए मैटर करता है। आर यू ब्रिंगिंग एनी चेंज टू द सोसाइटी? इफ़ यू डू नॉट, देर इज़ नो पॉइंट यू आर एग्जिस्टिंग। तो आप कुछ ऐसा करो कि आपका एग्जिस्टेंस मैटर करे। चाहे देखो हर बंदा बड़े स्केल पे करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई छोटे स्केल पे करेगा, कोई बड़े स्केल पे करेगा, आप जैसे भी कर सकते हो। आप सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में रखो कि आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हो क्या? आपके होने से सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है क्या? आपके होने का कोई फ़र्क पड़ता है क्या? अगर आप हो और नहीं हो एक ही बात है, तो फिर आप क्यों हो? आपका होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप हो तो कुछ तो करो, ऐसा कुछ करो कि कुछ चीज़। और जो चेंज आप लोगों में देखना चाहते हो वो चेंज पहले अपने अंदर लाओ। जब आप अपने अंदर वो चेंज लाओगे तो अपने आप दूसरों के अंदर वो चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े स्लोगन्स लिखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है। जैसे बोलते चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने घर में अपनी माँ अपनी बहनों को इज्जत देना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आप बाहर इज्जत दोगे। तो आप पहले जो चेंज सोसाइटी में देखना चाहते हो, आप चाहते हो हमारी सोसाइटी क्लीन हो, पहले घर क्लीन करो। सोसाइटी आपको चाहिए लगता है कि बहुत कचरा है, खुद कचरा उठा के बाजू में डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? आप छोटे नहीं हो जाने वाले हो। तो आपका आपकी सोसाइटी की तरफ, स्कूल की तरफ, बोईसर विसिनिटी की तरफ एक ऐसा अप्रोच हो कि मेरा एग्जिस्टेंस मैटर करे, मेरे होने का कुछ फर्क पड़े, मेरा एग्जिस्टेंस लोगों के लिए मैटर करे, हर चीज के लिए मैं कुछ चेंज ला रहा हूँ, बस वो मैटर होना चाहिए। बस दैट इज इट सर। फैंटास्टिक थॉट। मैं अभी प्रेजेंट स्टूडेंट्स को पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा उनके तरफ रेफर करके बोल रहा हूँ कि द एग्जाम्पल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आज हमने मोहम्मद से बात की, तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, टीवीएम से निकला हुआ बच्चा, जो उन्होंने उसने खुद बोला कि यू नो ही वाज नॉट दैट ग्रेट व्हेन इट कम्स टू स्टडीज एंड गेटिंग मार्क्स एंड एवरीथिंग, बट हर एक के लाइफ में एक फेज होता है, आपको मिल जाती है कहीं कहीं पे वो मंजिल, आपको किसी को 10th में ही पता चल जाता है कि मेरे पास क्या है, किसी को 12th में, किसी को ग्रेजुएशन, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको लेकिन वो पाथ पे रहना है, नो, और इंस्पायरिंग लोगों से देखना है, मिलना है, बात करना है बोईसर में जो है। और इस प्रोग्राम के थ्रू वही कोशिश है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो टीवीएम से निकले हैं मेरे से पहले, मैं तो कितने को नहीं जानता है, मोर देन 3 decades ऑफ हिस्ट्री। मेरे मैंने तो सिर्फ 15 साल ही निकाले टीवीएम के साथ, कितने साल, कितने बच्चे होंगे, मोर देन 4500 की स्ट्रेंथ है हमारी स्टूडेंट्स की। तो इमेजिन हर साल कितने बच्चे पास आउट होके निकलते हैं, 10th हो 12th हो, इट्स अ बिग नंबर। पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे होंगे, हमें वो तो हमें अभी ढूंढना है, ऐसे जेम्स जो हमारे कांटेक्ट में ही नहीं है। इसलिए बिगिन इसी तरह से करना था कि जो है आजू बाजू में उनसे बात की जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। एंड एट द एंड मैं वापस एक बार इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये जो इनिशिएटिव हमने लिया है, एक जस्ट शुरुआत की है, पर्पस तो हमने बता दिया व्यूवर्स को, इसके बारे में आपको क्या लगता है आगे इसके बारे में क्या हो सकता है, कैसे बेटर हो सकता है? नितिन सर, मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने ऐसी कोई सोच रखी। क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, एक बार शुरू हो जाए फिर सब लोग करते हैं। आई होप बाकी स्कूल्स कॉलेज भी हमको फॉलो करेंगे, ये सब जगह शुरू होगा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऐसी चीज़ों को कंसेप्चुअलाइज करना। तो आपने ऐसा थॉट लाया, ऐसा कंसेप्ट लाया, बहुत बड़ी बात है। और आपने मुझसे डिस्कस किया, ये और बड़ी बात है। और मुझे पूछा कि मोहम्मद तो इंटरव्यू देगा क्या, ये तो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि मेरा इंटरव्यू ले, इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैंने इतना बड़ा कुछ हासिल नहीं किया। लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा, मेरा पहला इंटरव्यू लिया, मुझे इस इतनी इज्जत बख्शी, बहुत बड़ी बात है सर। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इंटरव्यू दूँ। तो थैंक यू सर। और आप लोग जो सुन रहे हैं, मेरे बाद कई सारे ऐसे इंटरव्यूज आएंगे जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां होंगी, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि टीवीएम ने सही में बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए, मैं बोलूंगा पैदा किए टीवीएम ने। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, बहुत कुछ बहुत बड़े लोग हैं आज वो। तो उनके इंटरव्यूज भी आएंगे। तो मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मुझे इंटरव्यू के लिए मौका मिला, अच्छी बात है। और इससे क्या होगा सर, बहुत लोग कनेक्ट होंगे। आज जैसे मेरे बैच के लोग सुनेंगे तो अच्छा फील करेंगे। आज टीवीएम के बहुत सारे जो मेरे बने दोस्त है, टीवीएम में बने, वो आज भी मेरे दोस्त है, मेरे से कनेक्टेड है। जय जी वर्गीस है, प्रमोद लड़कत है, स्वप्निल जनार्दन है, परेश जोगलेकर है, प्रणय संख्य है, पल्लवी है, राजश्री है, तृप्ति है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये सब टीवीएम के फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो उस टाइम पे दोस्त थे, आज कनेक्टेड नहीं है, मैं उनको मिस करता हूँ। रुशित शाह है, अंकुर तोड़ी है, राहुल लाला है, रोजो जॉन है, किरण गायकवाड़ है, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और भी बहुत सारे नाम होंगे, मुझे याद नहीं है। तो बहुत लोग कनेक्ट होंगे, मुझे अच्छा लग रहा है। शायद मुझे सुन के मेरे दोस्तों को अच्छा लगेगा, उनको वो फील आ जाएगा। तो ऐसे इससे क्या होगा, बहुत लोग कनेक्ट होंगे। बहुत सारे लोग जो टीवीएम से भी जुड़े नहीं है, टीवीएम के पार्ट है लेकिन आज टीवीएम से कनेक्टेड नहीं है, इस इनिशिएटिव की वजह से कनेक्ट होंगे। हमारा मैसेज हमारे नेक्स्ट जो जनरेशन है, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उन तक पास होगा। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आज टीवीएम से ऐसे लोग गए हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई हम भी कुछ बने, मैं तो नहीं लेकिन और लोगों को सुन के उनको लगेगा कि हम भी कुछ बने। तो अच्छा इनिशिएटिव है सर, थैंक यू वेरी मच। मैं एक लास्ट मेंशन कर दूं कि सारा इंटरव्यू टीवीएम के बारे में हुआ, लेकिन 3 साल मैंने पीएल श्रॉफ कॉलेज चिंचने में भी पढ़ाई की है। पीएल श्रॉफ कॉलेज का भी मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। वहाँ के टीचर्स ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो भी मेरे मेंटर्स हैं। लेकिन टीवीएम मेरे लिए हमेशा प्राइमरी रहेगा, क्योंकि मेरा बचपन और मेरे 14 साल का एजुकेशन वहाँ पे गुजरा है। तो थैंक यू टीवीएम, थैंक यू पीएल श्रॉफ कॉलेज, थैंक यू जॉन रोजारियो मैडम, एंड नितिन सर, सबसे ज़्यादा थैंक यू आपका कि आपने ये आइडिया रखा और मुझे इसके लिए कंसिडर किया। इसके लिए कंसिडर होना भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। एंड गाइस, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी, आपने मुझे सुना, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। इट्स एक्चुअली हिज सिंप्लिसिटी। यू इसे अभी भी लगता है कि इंटरव्यू लेने के लिए उसको चुना नहीं जाना चाहिए था, बट मुझे पता है कि किससे क्या मेरे बच्चों को सीखने मिलेगा। ऑब्वियसली बहुत सारे नाम है, वी वुड नॉट बी एबल टू इवन कवर एवरीवन। इतने साल की हिस्ट्री, इतने सारे स्टूडेंट्स, आप कोई भी फील्ड उठा के देख लो, टीवीएम का एक बड़ा स्टैम्प वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स लेके गए और बहुत अलग लेवल पे लेके गए। आप वेदर यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स और म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट लिटरेचर, यू टॉक अबाउट एनीथिंग, मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई जस्ट वांटेड टू बिगिन। और और एक पर्पस, जैसे इसने बोला, ऐसा था कि बात तो होती रहती है लेकिन डॉक्यूमेंटेड कुछ नहीं है ना। आज हम बात करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनेंगे, मैं भूल जाऊंगा या किसी से शेयर करूंगा, हो सकता है, या मैं भूल जाऊंगा। तो ये जो लर्निंग है, मुझे लगता है कि, और जैसे मोहम्मद ने बोला कि बाकी सारे स्कूल भी हो सकता है इसको कॉपी करे, देर इज, इनफैक्ट आई वुड, डेफिनेटली सर, फॉलो करेंगे। नहीं नहीं, हाँ, फॉलो करे आइडिया को। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ये सबने करना चाहिए, यस, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली। हर स्कूल की जो बोलते हैं ना, ये लेगेसी होती है। एक उनके कुछ बड़े नाम होते हैं जो स्कूल को प्राउड बनाते हैं, और उनकी बातें सुनना, हम लोग पॉसिबल तो नहीं है कि हर किसी को बुलाए स्कूल में और बच्चों से बात करवाए, इतना शेड्यूल उस तरह का नहीं होता है। तो ये एक अलग वे है जिससे हम उनसे बात कर सकते हैं। और उन्हें डॉक्यूमेंटेड थिंग है, किसी को भी कभी भी लगे उनकी बातें, उनके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीए फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, वो मोहम्मद को सुनेगा। जो कभी अगर हम कर सके, किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से बात कर सके, तो जो स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं, जो जिनके लिए वो पर्सन हीरो है, वो उनको फॉलो करेंगे, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। डॉक्यूमेंट्री इन द सेंस इंटरव्यू देखेंगे, नॉट डॉक्यूमेंट्री वुड नॉट बी द परफेक्ट वर्ड और करेक्ट वर्ड रादर फॉर दिस। बट ये एक कोशिश थी, बट
जैसे इसने कहा कि he thanked me for considering him. I would in fact thank him, not just because he agreed to talk to me about this all this, but more than that, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस इनिशिएटिव के बारे में बात की, तो देन यू हैव टू हैव समबडी टू सेकंड इट. कोई किसी को बिलीफ तो होना चाहिए. आइडिया दिमाग में आने से कुछ नहीं होता है. सामने वाले किसी को तो बिलीफ होना चाहिए कि अरे ये ठीक है, ये वर्थ है. और if a person like Mohammed tells you that it's worth, then it must be. So with this, I would uh, uh, rather take you a leave with this first video of this series, James of TVM, and many more James to come, uh, and share their experiences. Let us hope many come, and I would be able to cover them all, because that's a big headache. And obviously, your feedback is welcome, in fact necessary. It's absolutely necessary, because then only you would know. जो भी opinion रहेंगे, आपके जो भी feedback रहेंगे, we'll look into it. I can guarantee it. So just one request, obviously, just like any video on the YouTube, if you want to listen more and more James of TVMs and learn something and learn from their experiences and listen to them, then obviously do like, comment, share the link of the video, as well as subscribe, because when you get a next person, next gem on the video for the interview, you would immediately know about it. So thank you very much. uh, Thank you, Mohammed, Thank you, sir. for And thank you, this everybody. fantastic beginning. Thank you, sir. And thank you all the viewers for listening to us for that long time. So thank you, all of you. Thanks once again. And thank you once again, Mohammed. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everybody. Okay. Let us hope and meet again in the next video. Thank you very much. Have a nice time.